Good morning students. This is your science classes and we discussed chapter number 2 acids, bases and salt. Previously we discussed the topic acids and bases and also we discussed the topic indicator. Students, acids are derived from the Latin word acidus which means sour. So acids are those substances which have sour in taste. These are called acid. For example, lemon, orange and some chemical acids are sulfuric acid, hydrochloric acid, and next topic is base. Base are those substances whose taste in bitter. So ऐसे substances जो टेस्ट में bitter होते हैं ऐसे substances क्या कहलाते हैं? Base कहलाते हैं. And example that is sodium hydroxide, potassium hydroxide. These are base. And next topic is indicator. Indicator is identified the given solution is acidic or basic. Neutral, substances, substances which have are neither acidic nor basic are called neutral substances. ऐसे substances जो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं नेचर में, these substances are called neutral substances. Next topic is neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. In the process of neutralization, salt and water are produced with the evolution of heat. Reaction acid plus base given salt and water. For example, we take acid that is HCl, base NaOH, and we obtain salt
NaCl plus water H2O. Here we can see that HCl is the hydrochloric acid and NaOH is the sodium hydroxide NaCl sodium chloride and H2O is the water. So neutralization reaction, the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Means ऐसी reaction मीन्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक एसिड और दूसरा सब्सटेंस जो होता है वो बेस होता है. एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं. और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर. एंड दीज रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. For example, we take hydrochloric acid, that is acids, and sodium hydroxide, that is NaOH, and we obtain sodium chloride, NaCl, and water, that is H2O. Some another example, we take H2SO4 and NaOH, then we can see that NaSO4, sodium sulfate and water, that is sulfuric acid, sodium hydroxide, and we obtain sodium sulfate and water. Next topic is salt. The product formed means a new substance. A new substances by neutralization सॉल्ट क्या होते हैं? द प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स ए न्यू सब्सटेंसेस बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट. मीन्स जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो वहां से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं. और ये सॉल्ट मीन्स NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं.
Example, acid and base. When acid and base react, then salt and water form. HCl, NaOH, we obtain NaCl and H2O. HCl is the hydrochloric acid. Hydrochloric acid. NaOH is sodium hydroxide. Sodium chloride, NaCl, and H2O is the water. And sodium chloride is the new substance that is called salt. Next topic, lichens. An indicator called litmus is extracted from lichens Litmus has mauve, that is purple color. In distilled water, in acidic solution, it turns red. When it is added to basic solution, it turns blue. Usually it is available as red and blue litmus paper. When a red litmus paper strip is dipped into basic solution, it turns blue.
paper is dipped into acidic solution, it turns red in color. Lichens, an indicator called litmus is extracted from lichens. Means अभी हम लोगों ने देखा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं. The given solution identified through the litmus paper which are made up by lichens. Means जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं. और जनरली सबसे ज्यादा अगर हम लोग लैब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पेपर यूज किया जाता है, मीन्स इंडिकेटर यूज किया जाता है, वो लिटमस पेपर को हम लोग यूज करते हैं. लिटमस हैज मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर इन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड. जब लिटमस पेपर पे अगर कोई भी हम लोग एसिड सोल्यूशन को, फॉर एग्जांपल अगर H2SO4 को या HCl को हम लोग लिटमस पेपर पे ड्रॉप वाइज जैसे ही 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालेंगे तो बेसिकली या तो लिटमस पेपर को सोल्यूशन में हम लोग डिप करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्लू लिटमस क्या है. अगर when blue litmus paper is dipped into the acidic solution it turns red. means blue litmus क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन को रेड में कर देता है. यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ब्लू लिटमस टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन इनटू रेड. ब्लू लिटमस एसिडिक सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है. यूजुअली इट्स अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और हम लोग ये देखते हैं कि ये जनरली क्या है, ब्लू और रेड कलर में ही हमें ऑब्टेन होता है. When a red litmus paper strip is dipped into the basic solution, जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हैं. बेसिक सोल्यूशन ये हमारा हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन. ऐसे सोल्यूशन जो टेस्ट में बिटर और बेसिक सोल्यूशंस होते हैं, ये जब लिटमस टेस्ट हम लोग करते हैं तो लिटमस टेस्ट में रेड लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन को टर्न कर देता है, यानी चेंज कर देता है ब्लू कलर में. ओके स्टूडेंट्स, some of natural acid base indicators are some of natural acid base indicator are यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज द टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी. ये कुछ जो इंडिकेटर्स है जो नेचुरल ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे टर्मरिक, चाइना रोज और बीट रूट्स, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है. सो इट टर्न्स from yellow to red in alkaline. Alkaline means in bracket basic solution. Next, China rose petal.
China rose petal, China rose petal solution turns dark pink magenta in acidic solution and green in basic solution. बेसिक सोल्यूशन मीन्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं टर्मरिक क्या करता है, इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड इन एल्केलाइन बेसिक सोल्यूशन। मीन्स टर्मरिक क्या करता है, जैसे ही हमारे पास ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स जैसे ही हम लोग बेसिक सोल्यूशन में अगर टर्मरिक होता है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रॉम येलो टू रेड। मीन्स टर्मरिक जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आएगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे क्लोथ्स पे टर्मरिक पड़ा रहता है, जैसे ही वो सोप के कांटेक्ट में आता है तो सोप में क्या होते हैं, ऐसे सोप जो बेसिकली जैसे जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो जैसे ही ये टर्मरिक के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या होते हैं, रेड कलर में टर्न्स हो जाते हैं। लेकिन जो चाइना रोज पेटल है जिसको हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं यानी गुड़हल, ये क्या करता है, ये एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन दोनों को आइडेंटिफाई करता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन में चाइना रोज क्या करता है, डार्क पिंक कलर देता है, और जैसे ही बेसिक सोल्यूशन यानी बेस सोल्यूशन में अगर हम लोग चाइना रोज पेटल को हम लोगों ने जो इंडिकेटर प्रिपेयर किया है, जैसे हम लोग बेस में उसको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली कौन से कलर हमें देगा, ये ग्रीन कलर हमें देगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप this topic is clear to all of you. In my next video, we discuss some other topic related to this chapter. Thank you and have a nice day.